Good afternoon and welcome everyone to this class on current affairs in which we are going to continue the discussion on environment related conventions. Today we are going to talk about Rotterdam Convention. Basel Convention was covered yesterday. Just a quick recap of what we had covered in the previous class. So, adopted by the Conference of Plenipotentiaries in Basel, Switzerland, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, generally known as the Basel Convention, came into force in 1992, specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. It does not address the movement of radioactive waste. तो ये इसका lacune है. This is the lacune here, that it does not address the movement of radioactive waste. Ban amendment adopted by the parties to the Basel Convention in 1995. It prohibits Basel ban amendment. इसको ban amendment बोला जाता है prohibit करने के लिए, ठीक है, hazardous waste from the member states of European Union, OECD and Liechtenstein, all other countries, ठीक है. 1995 बेसल बैन अमेंडमेंट लाया गया था, अ ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन. पहले बेसल कन्वेंशन था, फिर बैन अमेंडमेंट लाया गया. It has become an international law after Croatia became the 97th country to ratify it on September 6, 2019. फिर कार्टाजीना प्रोटोकॉल अलग है, कार्टाजीना डिक्लेरेशन अलग है. कार्टाजीना डिक्लेरेशन ऑन द प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन एंड रिकवरी ऑफ हैजर्डस वेस्ट्स and other wastes, adopted on the occasion of 10th meeting of Conference of Parties, sets forth a strong commitment by the parties to Basel Convention. Cartagena Declaration is related to which of the conventions? Basel Convention and movement of hazardous waste only. ठीक है, इसको और ज़्यादा strengthen करने के लिए. Adopted on the occasion of the 10th meeting of the Conference of Parties, sets forth a strong commitment by the parties to the Basel Convention to promote the prevention and minimization of the generation of hazardous wastes and other wastes. Okay, recent meeting, the 14th meeting of Conference of Parties to Basel Convention was held along with the 9th meeting of Conference of Parties to Rotterdam Convention and the 9th meeting of the Conference of Parties to Stockholm Convention in Geneva, Switzerland. Theme: Clean Planet, Healthy People, Sound Management of Chemicals and Wastes. Clean Planet, Healthy People, Sound Management of Chemicals and Wastes. तो ट्रिपल COP. अब ट्रिपल COP's meeting took place in Geneva, Switzerland from April to May 2019. ये पढ़ना ध्यान से. बेसल कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, रोटरडैम कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 9, स्टॉकहोम कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 9, ये तीनों एक साथ हुई थी, ठीक है. अंडर द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, two important issues were discussed and decided, that is technical guidelines on e-waste and inclusion of the plastic waste in prior informed consent. तो पहले फटाफट से दूसरी कन्वेंशन की ओर मैं ले जा रहा हूं. प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है क्या, इसको समझते हैं. जस्ट 1 मिनट. What is the meaning of prior informed consent? Just a minute, I had covered it somewhere. Okay, लिखो इसका मतलब prior informed consent का. I shall dictate it to you right away. इसमें नहीं लिखा है. Prior informed consent मतलब prior informed consent is one of the main provisions of Rotterdam Convention. Okay, बाकी conventions में भी अप्लाई होता है. रोटरडैम कन्वेंशन और बेसल कन्वेंशन क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं तो इसलिए. तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट states that parties that are importing the chemicals
listed in Annex 3 of the convention states that parties which are importing the chemicals as listed in Annex 3 of the convention have to formally obtain and disseminate the decision of the receiving and they have to formally obtain and disseminate the decision of receiving future shipments of such chemicals. They have to formally obtain and disseminate the decision of receiving future shipments of such chemicals. Importing parties have to ensure that the decisions related to their import are in compliance by the exporting parties. ठीक है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट में जो पार्टी इंपोर्ट कर रही है केमिकल्स को, जो एनेक्स 3 में लिखे हैं, रोटरडैम कन्वेंशन का एक एनेक्स 3 है, हम बेसल कन्वेंशन की भी बात कर रहे हैं, रोटरडैम से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो एनेक्स 3 में जो भी केमिकल्स दे रखे हैं उनको यदि कोई पार्टी इंपोर्ट कर रही है उसको प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना होगा। किसका? रोटरडैम कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है वहां से, कि ये केमिकल्स हम वहां पे भेज रहे हैं। इंपोर्टिंग पार्टीज हैव टू एंश्योर दैट डिसीजंस रिलेटेड टू देयर इंपोर्ट आर वेल इन कंप्लायंस। So this is there, clear? Importing parties have to ensure that the decisions related to their import are well in compliance by the exporting parties, clear? So there are 52 chemicals listed in Annex 3 of the Rotterdam Convention, for the trade of which parties have to follow the mechanism of prior informed consent procedure. 52 ऐसे chemicals हैं, क्लियर, जिनके लिए पार्टीज को प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना जरूरी होगा। ओके, रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लो, दोनों चीजें ना रिलेटेड हैं, बेसल कन्वेंशन और ये रोटरडैम, जो हमने कल थोड़ा सा स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा था। फिर उससे पहले क्विक रिकैप एक बार देख लो फटाफट। स्टॉकहोम कल मैंने डिटेल में कवर किया था, ये तो वेना आ गया ओजोन डिप्लीटिंग पे। रोटरडैम हमने उससे पहले कवर किया था शायद, राइट? तो डीडीटी, ये सारे जो केमिकल्स हैं इनका ट्रांसशिपमेंट ना हो पाए, इसी से जुड़े ये तीनों। इसीलिए आप देखोगे कि यहां पे ट्रिपल सीओपी की बात हम कर रहे थे, राइट? ट्रिपल सीओपी में रोटरडैम कन्वेंशन भी एक है। तो द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ वन लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द अदर, राइट? तो ये सारा कुछ है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू केमिकल्स अंडर एनेक्स 3, मेंबर पार्टीज हैव द फॉलोइंग चॉइसेस। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए ये देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants एंड रोटरडैम कन्वेंशन ऑन ट्रांसशिपमेंट वाले, बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांसशिपमेंट वाली जो है, तीनों रिलेटेड है। नाउ बेसल कन्वेंशन, अ प्रपोजल वाज देयर बाय इंडिया टू प्रिवेंट द डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम डंपिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने देखा कि बेसल के साथ कार्टाजीना डिक्लेरेशन में प्लास्टिक्स को भी इंक्लूड करने की बात करी जा रही थी, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 10th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहले इसमें प्लास्टिक इंक्लूडेड नहीं है, राइट? कार्टाजीना डिक्लेरेशन ऑन प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन ऑफ एंड रिकवरी ऑफ हैजर्डस वेस्ट अडॉप्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ 10th मीटिंग। तो इसको बेसल कन्वेंशन में ये करा गया कि प्लास्टिक्स भी इसमें ऐड करने की बात करी गई। नाउ coming to the other part, a key outcome of the meeting was an amendment to the convention that includes plastic waste in a legally binding framework, which would make global trade in plastic waste only, more transparent and better regulated, whilst also ensuring that management of plastic is safer for human health and environment. However, it does not bar the countries from exporting various categories of plastic waste. कंट्रीज पे कोई बैन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में प्लास्टिक वेस्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए। आई एम सो सॉरी,
पॉल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट एक्नॉलेज्ड एज द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इसीलिए बेसल कन्वेंशन के अंडर लाने की ये बात करी जा रही है। तो इंडिया की इस प्रपोजल को डिफीट कर दिया गया था, राइट। अ की अमेंडमेंट of the meeting was an amendment to the convention that includes plastic waste in a legally binding framework। इंडिया की प्रपोजल को जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाला पार्ट जो है वो रह गया, प्लास्टिक वेस्ट वाला अग्री किया गया, लेकिन इंडिया ना जीत जाए, इंडिया एक मॉरल विनर ना बन जाए, तो इसलिए ये किया गया। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। और यू आर राइट, ओके। तो देखो इंडिया की प्रपोजल को डिफीट करके अल्टीमेटली मीटिंग में इसे पास कर दिया गया, बट इंडिया की प्रपोजल को डिफीट कर दिया। क्यों? एक तो इंडिया मॉरल विनर ना बन जाए इसलिए, दूसरा इंडिया की प्रपोजल में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्लास्टिक वेस्ट दोनों कवर्ड थी। अभी के लिए प्लास्टिक वेस्ट इन्होंने कवर कर दी, बल्कि जो और ज्यादा हैजर्डस है, और ज्यादा हार्मफुल है, हैजर्डस है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो अभी बैन नहीं करे। अगर इंडिया की प्रपोजल पे बात होती तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी बैन करना पड़ता। तो यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में प्लास्टिक वेस्ट भी है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, चार्जर्स, मोबाइल फोन्स, काफी ज्यादा वेस्ट डंपिंग होती है। कहां पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। तो उसको भी रोकना पड़ता, इसलिए ये रोकना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। प्लास्टिक वेस्ट को जरूरी समझा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर ये अपनी कंट्रीज में अमेरिका डंप करने लगेगा तो उनका और ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि अभी इंडिया की प्रपोजल को छोड़ के अपनी वाहवाही बटोरते हैं। वाई टू अलाउ इंडिया टू क्लेम दी गुडविल, वाई शुडंट वी बी पासिंग एन अमेंडमेंट एंड बैन दी प्लास्टिक्स ओनली। ओके, तो ये था इसमें बेसल कन्वेंशन में। अब आगे चलते हैं मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन किसके लिए है? मर्क्यूरी के लिए, राइट। तो मिनामाटा कन्वेंशन 10 अक्टूबर 2013, इफेक्टिव फ्रॉम 16 अक्टूबर 2017। इंडिया ने इसे कब रेटिफाई किया है? सो सॉरी गाइस, 2018 में इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है। इट इज लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम anthropogenic emissions and release of mercury and mercury compounds. Release of mercury and mercury compounds. Clear? So these things are there now. Okay, now coming here to the other aspects. बाकी चीजों पे फटाफट से देखते हैं। To protect human health and environment from anthropogenic emissions and release of mercury and mercury compounds here. Okay. Now, India signed the global treaty in 2014. In इंडिया ने ग्लोबल ट्रीटी को 2014 में साइन किया था, राइट। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे आप देखोगे, इन इंडिया दिस डेंजरस मेटल मर्करी हैज नियरली 3000 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को ज्यादा यूज किया जा रहा है, राइट। Just give me a break of 1 minute, guys. Just a break of 1 minute.
Can you hear me now? No. So these parts are there. Now just jumping to the Minamata Convention quickly. सो इंडिया साइंड दिस थिंग इन, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि यूपीएससी एप्लीकेशंस वगैरह पे क्वेश्चन पूछ रही है. इंडिया विल हैव टू फेज आउट मर्करी विद इन 6 to 10 years फ्रॉम 2014. ओके, 2014 से 6 से 10 साल के अंदर. The country has signed the global treaty Minamata Convention. Minamata is the name of a disease in Japan and the name of the city in this area. ठीक है, जापान का एक सिटी है, वहां पे एक डिजीज हुई थी, उसका नाम है, और जापान में ही ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अक्टूबर 2013 में. तो दिस मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द सिग्नेटरीज टू बैन द यूज ऑफ डेडली नर्व टॉक्सिन. मर्करी को नर्व टॉक्सिन भी कहा जाता है बिकॉज इट अटैक्स द नर्वस सिस्टम. क्लियर? तो मूव विल प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, which is currently being used in lighting and many healthcare products including clinical thermometers, blood pressure monitors and topical antiseptic agents. Though the convention will ban the production, import and export of products that contain mercury by 2020. तो convention ban करती है production, import and export 2020, but it allows the use in certain critical areas, specifically healthcare, for the next 4 years. ठीक है, 2014 से लेकर next 4 years 2018 तक. The convention gives the countries another 15 years to end all mercury mining. mercury की mining 2030 तक कह लो पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए. Clear? Now, application and uses of mercury from 2020, the convention will ban the production, import and export of products that contain mercury, including BP monitors, ये सारा कुछ. Until 2020, convention was just encouraging the signatory countries to gradually reduce their use. 2020 में एक deadline, ये कह लो कि intermediary target achieve होना था. In case of small scale gold mining, अब आपको ये ध्यान रखना है कि मर्करी की एप्लीकेशन स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में भी होती है. ठीक है, फॉर विच मर्करी इज बीइंग यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली. गोल्ड को माइन करने के लिए मर्करी यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है. प्रीलिम्स में ऑप्शन में ये आएगा, मर्करी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्ड माइनिंग. आंसर इज यस. The convention has stipulated reduction in the usage of mercury. The treaty also states that for constructing coal-powered thermal power plants. Answer 2. Coal-powered thermal power plants में ये mercury use होता है? Yes, mercury इसमें भी use होता है. The countries which are signatories will be required to include equipment to help minimize mercury emissions. Treaty also states that for constructing coal-powered thermal power plants, countries which are signatories will be required to include equipment to help minimize mercury emissions. Mercury is released to the environment from natural sources. Point to be noted for prelims again, natural sources से भी mercury निकलता है. ठीक है, and as a result of human activities, natural activities, anthropogenic activities, both release the mercury. Points to be noted for prelims. Once it has entered the environment, mercury cycles between air, land and water until it is eventually removed from the system through burial in the deep ocean sediments or lake sediments, through entrapment in stable mineral compounds. mineral compounds में इसको पैक कर दिया जाता है, जैसे कि ये mercury है, इसको बाकी के mineral compounds में सराउंड करके पैक कर दिया. Which presents the greatest health risk to humans and wildlife, is mainly formed in the aquatic environments through natural microbial process. Clear है? तो यहाँ पे देखो anthropogenic, natural, re-emission. अब तुम्हें ये देखना है जियोजेनिक, यानी कि जियोजेनिक ये जब कभी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो मर्करी निकलता है. आंसर इज यस. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. हम आईएएस ऑफिसर्स को क्या करना होता है? हमें यही करना होता है, ये चेक करना होता है कि किस चीज में मर्करी निकलता है या नहीं, हमें उसको कंट्रोल करना है. हमें साइंटिस्ट वाली अप्रोच नहीं लेनी, हमें सिर्फ
एप्लीकेशन देखना है कि भैया अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ या कोई सेक्रेटरी हूँ कल को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, तो मेरे को प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने होंगे कि यहाँ से ये मरकरी लावा इरप्शन में, वॉल्केनो इरप्शन में निकल सकता है, तो मेरे को उसे कंट्रोल करना है। बायोमास बर्निंग, यस, ठीक है। सॉइल एंड वेजिटेशन, यस। एंथ्रोपोजेनिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यस, क्लियर। Minamata disease, which affects the brains and kidneys, affected more than thousands in Japan. It was caused by dumping of effluents containing mercury into the Minamata Bay. Minamata Bay नाम का एक एरिया है, by an industry. The disease was mostly caused by eating sea fish from the contaminated waters. So it can enter the food chain through sea fish. जो सी में, मिनामाटा बे में एक इंडस्ट्री ने इसको कंटेनर्स में पैक करके, कंपाउंड्स में पैक करके मरकरी को डंप कर दिया, लेकिन द फिश स्टार्टेड फीडिंग ऑन दिस, ठीक है। तो फिश ने इसके ऊपर फीड किया और फिश हो गई पॉइजनस, तो ये चीज यहाँ पे फूड चेन में एंटर होने लग गई, क्लियर। तो ये है। नाउ व्हाट इज एग्जेम्प्टेड एंड व्हाट इज नॉट एग्जेम्प्टेड, अगेन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। Coal-fired power plants, boilers and smelters. Nations which have signed the Minamata Convention must use the best available emission control technologies in new power plants, boilers and smelters, but they are not mandatory for the older plants. Instead, they can take other steps for existing plants such as emission targets. Lights and bulbs. Compact fluorescent bulbs of 30 watts or less will be banned by 2020. जो छोटे बल्ब हैं 30 वॉट्स या उससे कम के CFL बल्ब जो हैं, ओके, और उनको बैन करने के बाद इफ दे एक्सीड 5 मिलीग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि CFL लाइट्स में आज भी मर्क्यूरी अलाउड है बट ओनली अप टू 5 milligrams. Certain other halofosfate and fluorescent lamps will also be banned by 2020. That is why LED has come now. Mercury mining, primary mining of mercury will be banned. Mercury mines already in operation can continue for 15 years only. Right? ये चीजें पूछी जाती हैं जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस की हैं। अब कन्वेंशन साइन हुई, कब साइन हुई, इंडिया ने कब रेटिफाई करी, ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे, पहले रादर ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जैसे जैसे हम इंटरनेट इकोनॉमी, इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन में जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, तो बस सर्च करने का पंगा है, तो इसीलिए ये सारा कुछ करवाया जा रहा है, क्लियर। नाउ गोल्ड माइनिंग, मर्क्यूरी विल बी अलाउड इन artisanal and small scale gold mining where it is used to separate gold from the rocks and sediments. The Minamata Convention encourages nations to reduce or phase out its use for gold mining, but no targets, without targets or dates are included. Recent studies have documented that people in communities near artisanal mining areas in Peru and Brazil are exposed to high amounts of mercury. Dental filling, जब आप डेंटिस्ट के पास में जाते हो, these are exempt from 2020 ban. Countries have agreed to phase out mercury in fillings by promoting alternatives. सिल्वर वगैरह को यूज किया जा रहा है आजकल, ठीक है। तो dental programs to minimize the need for filling or taking other steps. Vaccines which use mercury compounds, that is thimerosal, they are as preservative are exempt. thimerosal as preservative जिन वैक्सीन्स में यूज किया जा रहा है उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, वैक्सीन्स की शेल्फ लाइफ को मर्करी बढ़ाता है, ठीक है। मर्करी कंटेनिंग बैटरीज विल बी बैंड बाय 2020, इसीलिए बैटरीज का प्राइस बढ़ गया था 2020 में। एन एक्सेप्शन इज बटन सेल बैटरीज, बटन सेल होता है ना जो खिलौनों में डालते हो या वॉच में होता है, वो वाला सेल, ठीक है। बटन सेल बैटरीज यूज्ड इन इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस ओनली, वॉचेस वाला नहीं, जो इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे कोरोनरी हार्ट स्टेंट, उनमें अगर वो डल रहा है तो ठीक है। स्विचेस एंड रिलेज कंटेनिंग मर्क्यूरी विल बी बैंड बाय 2020। सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स, products containing more than 1 part per million of mercury will be banned by 2020. Mascara and other eye cosmetics are exempt because of concerns that there are no safe substitutes. Okay, so these things are there. Medical and monitoring devices, use of mercury in barometers, thermometers, hygrometers, manometers
will be banned by 2020. Religious traditional activities. Mercury used in religious or traditional ceremonies are exempt. Manufacturing mercury will be banned from chloralkali production and acetaldehyde production in 2025. Mercury production from chloralkali production or acetaldehyde production in 2025 and 2020 and 2018. राइट, तो ये सारा कुछ किया गया इसमें. व्हाट इज मिनामाटा? अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन जापान. लोकल कम्युनिटीज वर पॉइजन बाय मर्करी पॉल्यूशन हियर. एनवायरमेंटलिस्ट ब्रॉट द इशू टू ग्लोबल अटेंशन एंड कॉल फॉर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन. ओके, नाउ रॉटरडैम कन्वेंशन पे आते हैं फटाफट से. रॉटरडैम कन्वेंशन हमने कल कवर नहीं किया था, एक्चुअली मैं कवर कर रहा था तुम्हारे लिए, तो इसलिए लगा कि कवर हो गया है. Rotterdam Convention, India is a signatory to it and a party to it. The convention creates legally binding obligations for the implementation of the prior informed consent procedure, a multilateral treaty to promote the shared responsibilities in relation to importation of hazardous chemicals. PIC procedure means sharing information globally with all the treaty parties, with all the parties to the convention regarding certain chemicals and pesticides that have been considered hazardous to human health. अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 रिलेटेड कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड रोटरडैम कन्वेंशन. ठीक है, तो ये याद रहेगा. Now, objectives of the Rotterdam Convention. The parties of the Rotterdam Convention are expected to ensure the shared responsibilities and cooperative efforts while trading certain hazardous chemicals internationally, to promote shared responsibility in the international trade of such hazardous chemicals which can harm humans and its environment, to exchange information about the characteristics of chemicals, to exchange information, देखो, to promote shared responsibility. ठीक है, then they are expected to take cooperative efforts, shared responsibility. ठीक है, in the international trade of these does क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जा सकता है? Does Rotterdam Convention allow the international trade? Yes. ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इंपोर्टिंग कंट्री की और एक्सपोर्टिंग कंट्री की. दोनों में से इंपोर्टिंग कंट्री को बताना होगा कि एक्सपोर्टिंग कंट्री उन्हें ये एक्सपोर्ट कर रही है. बट इसका लेकुने क्या है? रेडियो एक्टिव मटीरियल इज नॉट कवर्ड सिंस इट इज अ कन्वेंशन विच कवर्स ओनली केमिकल्स. ठीक है, केमिकल्स ओनली. देखो यार, मैं सीधी सीधी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डिटेल में इसे कवर करना एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है, तो मैं उसे कवर कर रहा हूँ. Right now, to exchange information about the characteristics of the chemicals that the parties to convention trade so as to contribute to the environmentally sound use of such hazardous chemicals. Okay, now what is prior informed consent? ये वही consent की बात कर रहे हैं जो मैं पहले बता रहा था, जो मैंने डिक्टेट किया है. पढ़ो इसे एक बार, प्लीज रीड इट योरसेल्फ. हाजिरी लगाओ सारे, कितने लोग देख रहे हो, फटाफट से हाजिरी लगाओ. आधे लोगों ने क्या किया है कि क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं सोच के बंद करना शुरू कर दिया. गलत है वो. खुद बड़ा जैसे कोई तुमने कुछ उखाड़ लेना है घर बैठ के. मुझे भी पता है, हमने भी करी है तैयारी. वो सेल्फ स्टडी के नाम पे जो सेल्फ स्लीपिंग होती है ना, वो करना छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा. पढ़ लिया? So is it clear to everyone?
Alright, so these things are there. Now, coming here, there are 52 chemicals listed in the Annex 3 of the Rotterdam Convention, for the trade of which parties have to follow the mechanisms of prior informed consent. Right? Then, provisions of the Rotterdam Convention. The following are the provisions covered under the Rotterdam Convention. The convention covers those pesticides and industrial chemicals that are banned or severely restricted. Any concern related to the pesticides and industrial chemicals promotes their inclusion in the Annex 3 of the Convention. Annex 3, other than comprising chemicals that need prior informed consent, also may contain those chemicals and pesticides that present a risk under conditions of use in developing countries. Okay, developing countries or countries with economies in transition. A decision guidance document contains all the information regarding the chemicals mentioned under Annex 3. Okay, with respect to the chemicals under Annex 3, member parties have the following choices: to allow its import, to disallow its import, to allow its import with some conditions. इसको रटो एक बार इन 3 points को. With respect to chemicals which are under Annex 3, 52 chemicals we are talking about. Okay, two important mechanisms of the Rotterdam Convention. There are two important mechanisms under Rotterdam Convention. Prior informed consent, as explained above. Information exchange. It is a mechanism under which parties have to inform the Secretariat when they take a domestic regulatory action to ban or severely restrict a chemical. Any party that is exporting a chemical which is banned in its territory has to comply with the guidelines to inform all the importing parties before its फर्स्ट शिपमेंट. यानी कि अगर यूएसए में कोई भी ऐसा केमिकल डोमेस्टिकली बैंड है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बैंड है, और अगर यूएसए उसे किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एनी पार्टी दैट इज एक्सपोर्टिंग अ केमिकल विच इज बैंड इन इट्स ओन टेरिटरी, यूएसए क्या करेगा, ऐसे खतरनाक केमिकल्स को किसी दूसरी कंट्री को बेचेगा. अगर वो बेचेगा तो उसे सभी इंपोर्टिंग पार्टीज को बताना है. गाइडलाइंस वगैरह हैं रोटरडैम कन्वेंशन की जो ये कहती है कि यूएसए को ये बताना पड़ेगा एक्सपोर्टिंग कंट्री ने यदि अपनी टेरिटरी में उस केमिकल को बैन कर रखा है तो उसे बाकी सारी कंट्रीज को जिसे वो इंपोर्ट कर रही है और रोटरडैम कन्वेंशन के सेक्रेटेरिएट को ये बताना पड़ेगा कि तुमने इसे बैन क्यों किया, और अगर तुमने बैन किया फिर तुम दूसरी कंट्रीज को क्यों बेच रहे हो. राइट है, क्लियर. ये सारी चीजें हैं इसमें. एस्बेस्टोसिस, अब यहां पे थोड़ा सा तुम्हें लिखना पड़ेगा, डिक्टेशन दूंगा मैं, लिखो. व्हाट इज क्रिस्टोलाइट एस्बेस्टोस? क्रिस्टोलाइट एस्बेस्टोस. It is a mineral that is speculated to be added in. Crystallite asbestos is a mineral इसको एनेक्स 3 में डालने की बात हो रही है, ठीक है. एस्बेस्टोस इज अ ग्रुप ऑफ 6 नेचुरली अकरिंग मिनरल कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फाइबर्स. वो जो तुम आजकल जो टिन की शीट देखते हो ना, टिन की शीट, वैसे पहले एस्बेस्टोस की शीट्स आती थी कि नहीं, वो जो तुम देखते थे अपने गांव में जाके या नाना नानी के घर में, राइट. वो नेचुरली अकरिंग ऐसा फाइबर होता था जिसमें कि इंसुलेशन रहती थी. अंदर गर्मी है तो गर्मी रहेगी, सर्दी है तो सर्दी रहेगी, ऐसा होता था ना एस्बेस्टोस में. तो एस्बेस्टोस को एक अच्छा फाइब्रेशन के लिए फाइबर, जैसे आजकल प्लास्टिक की फाइबर यूज हो रही है गेट में शीट बनाने के लिए या टिन की चादरें यूज हो रही हैं, वैसे ही ये एस्बेस्टोस की चादर यूज होती थी, ठीक है. लेकिन इसको हार्मफुल माना जाता है, ठीक है. इट इज कैंसरस एज इट कॉजेज
मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा, जिन कंपनीज में ये बनाया जाता था, इन शीट्स को बनाया जाता था, उनको भी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का सामना करना पड़ता था, उनके वर्कर्स को। मीजोथेलीमिया, ई कर लेना एल के बाद, ओके। मीजोथेलियोमा, सॉरी, मीजोथेलियोमा, THELIOMA, MESOTHELIOMA, मीजोथेलियोमा, ओके। Crystallite asbestos is a well debated mineral that is expected to be added in Annex 3. इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है? इंडिया हैज अपोज्ड द लिस्टिंग ऑफ एस्बेस्टोस अंडर रोटरडैम कन्वेंशन, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हमारी कंट्री में काफ़ी जगह पे ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी है कि इंडिया ने ये स्टैंड क्यों लिया। इंडिया चाहता है कि इसको बैन ना किया जाए। हमारी कंट्री में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में या हिमाचल में या उत्तराखंड में एस्बेस्टोस की शीट्स आज भी यूज़ होती हैं। मंत्रियों के घर के बाहर जो आप एक बूथ बना देखते हो सिक्योरिटी गार्ड का, जहाँ पे वो गन लेके CRPF का जवान खड़ा रहता है, उसमें भी ज़्यादातर एस्बेस्टोस की शीट लगी होती है, राइट, इंसुलेशन के लिए, पानी, छाँव, बिजली से बचने के लिए, पानी और धूप से, ठंड से बचने के लिए। तो इंडिया में इसकी यूसेज इतनी ज़्यादा है तो इंडिया कहता है कि इसको बैन मत करो, राइट। क्लियर, ये सारा कुछ है यहाँ पे, डन। नाउ आगे चलते हैं। रामसार कन्वेंशन, ये थोड़ा सा मैं कल कवर करूंगा वैसे इसको, लेकिन एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। रामसार कन्वेंशन इफेक्टिव फ्रॉम 1975। इंडिया साइंड द रामसार कन्वेंशन ऑन 1 February 1982। इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, not a part of UN and UNESCO conventions. Convention on wetland adopted in Iranian city of Ramsar. Almost 90% of the UN member states from all the world's geographic regions have acceded to become contracting parties. Ramsar sites इंडिया में कितनी हैं? इंडिया में इतनी रामसार साइट्स हैं। ये सारे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो on 2 February 2021, India's first center for wetland conservation and management has been set up in Chennai. This is the trigger factor that you should be thorough with. This is the reason for which you have to be thorough with Ramsar Convention. Then Ayeyarwadi in Manipur is eyed as a potential Ramsar site. Ayeyarwadi, Manipur में. Sambar Lake has been in news for its deterioration over the salt mining. Sambar Lake is a Ramsar site in India. Sambar Lake is a Ramsar site. Clear? ओके, न्यू एडिशंस December 22 में सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स अप पुकसो एंड सोकर लद्दाख में। December 2020 सोकर वेटलैंड कहाँ पे है? लद्दाख में। देन November 2020 लोनार लेक महाराष्ट्र। November 2020 में सुर सरोवर, इसको कीथम लेक भी बोला जाता है, आगरा में। November 2020 की ही असन बराज उत्तराखंड। देन कंवर लेक और कबल ताल बिहार में। देन सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट February 2020 में इन्हें इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। क्लियर? नाउ कमिंग हियर, बॉन कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन पे डिटेल्स भी कवर करेंगे कल। तो एक बार जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक और PPT है जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है। Okay, let me open the new PPT here.
So these things are there. Now coming here, रामसार कन्वेंशन पे कुछ कुछ जो अपडेशन में कह रहा था, कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी. मिनावाटा कन्वेंशन, ये दोनों पीपीटी शेयर हो जाएंगी, एक टेलीग्राम पे और एक क्लास के सामने, तो तुम अकॉर्डिंगली इसे देख लेना, ठीक है. Okay, so these things are there. Now when we come to these aspects, Minamata disease which was first seen in the city of Minamata, Japan. तो ये मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स हैं. देन इफेक्ट्स ऑफ मर्करी, जो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया. मर्करी होता क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन. मर्करी इज कंसिडर्ड बाय WHO एज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स फॉर मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स. अ टेल ऑफ 2 मर्करी कंपाउंड्स, ये सारा कुछ आ जाता है इसमें. जो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत वर्बली समझाई हैं उसका थोड़ा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएगा. देन कमिंग हियर रॉटरडैम कन्वेंशन, थोड़ा सा और एडेड इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी. वेटलैंड्स क्या होती हैं. अब आते हैं रामसार कन्वेंशन पे. गल्फ क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन जो ज्योग्राफी का है वो भी यहाँ पे कवर करोगे, ठीक है. देन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कन्वेंशन ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अंडरटेक्स टू designate at least one wetland site for inclusion in the list of wetlands of international importance. The inclusion of a Ramsar site in the list embodies the government's commitment to take the steps necessary to ensure that its ecological character is maintained. Right? Ramsar's wetland sites of India. असम कंजर्वेशन, ये पूरी लिस्ट दे रखी है 42. वुलार लेक, वेम्बानद कोल, अपर गंगा रिवर, सोमोरीरी, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स. कब ये ऐड हुआ है सारा कुछ इसमें मेंशन्ड है, नवंबर 2020, ठीक है. अब जो सांबर लेक है राजस्थान, ये पढ़ोगे खुद से, ये तुम्हारा होमवर्क है. अभी आधा 45 मिनट्स के लिए हिलना मत अपनी सीट से जहाँ पे भी बैठे हो. राइट, आई एम गेटिंग इट शेयर्ड राइट अवे, सो योर ड्यूटी इज टू नॉट टू गेट अप फ्रॉम योर सीट. Lonar Lake, situated in the Deccan Plateau's volcanic basalt rock, it was created by the impact of a meteor. तो ये हो गया. उसके बाद सूर सरोवर लेक, कीथम लेक जिसको कहा जाता है, ये बत्तख चिड़िया देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें याद रखवाने के लिए. देन कबरताल वेटलैंड, कंवर झील भी इसको बोला जाता है. वाइटल फ्लड बफर. देन असम कंजर्वेशन, ये भी थोड़ा सा याद रहेगा. इन्हीं से पीपीटी स्लाइड से पढ़ना गाइस, थोड़ा याद रहेंगी चीज़ें. Okay, PDF you will be able to get on the Telegram channel. Visit the course page and you would be able to find the Telegram channel. Okay, Telegram channel मिल जाएगा. फिर उसके बाद जो क्लास का डैशबोर्ड है, जो JVs पे क्लासेस होती हैं जहाँ पे, उनके डैशबोर्ड पे भी आपको बता देता हूँ मैं. Just 1 minute. ये मैंने लॉगिन किया स्टूडियो जतिन, ठीक है. उसके बाद ये मेरा माय कोर्सेज में मैं गया. उसके बाद मेरा कौन सा कोर्स है, ये प्रीलिम्स स्पेशल बैच. मुझे ये देखना है कि मैं उस कोर्स में एनरोल्ड हूँ कि नहीं. जिस कोर्स में मैं एनरोल्ड हूँ वो कोर्स मुझे नहीं दिखेगा, वो कोर्स मुझे वही दिखेगा, बाकी कोर्सेज नहीं दिखेंगे, ठीक है. अब जब मैं इस कोर्स पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल GS इंटीग्रेटेड बैच, अब यहाँ पे आपको आपकी PPTs, प्रैक्टिस, PDF सारा कुछ मिल जाएगा. अगर आप उस क्लास में कोर्स में एनरोल्ड हो तो आपको ये लॉक वाला चीज़ नहीं दिखेगी, लॉक का आइकन नहीं दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा. यहाँ पे PDF शेयर होते हैं, क्लियर. और इसके अलावा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी PDF PPT शेयर किया जाता है. डन. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय गाइस. थैंक यू.